We'll start with the next topic better of electrostatics, capacitors. First topic is capacitance. Capacitance define कैसा करते हैं बेटा? How do we define the capacitance? Capacity to hold charge. Done. Capacity to hold the charge is called as what beta? Capacitance. Capacitance का formula याद है? C is equals to charge divided by V. Charge stored for your routine potential. Charge is inversely proportional to your V bit. C is equals to Q by your V. Done. ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकाले तो अपने को चार्ज आता है बेटा. क्लियर है? C is equals to your Q by V. Done बेटा. चलो नेक्स्ट वन. Capacitance of spherical capacitor. Capacitance of spherical capacitor. ठीक है. मान के चलो अपने पास एक स्पेरिकल शेप है इस तरह से. ठीक है. और ये हो गया इसका आर और इसके ऊपर हो गया चार्ज क्यू. इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटा? V इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर. ठीक है ना. तो C इज इक्वल्स टू हाउ मच? C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V. So that is equals to Q divided by this value will be equal to how much beta? K into Q divided by R. AQ can cancel. So that is equal to how much beta? R divided by K. यानी C value will be equal to your R divided by K की वैल्यू कितनी होती है? 1 by 4 pi epsilon naught. यानी इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो we'll be getting the answer as how much? 4 pi epsilon naught into your R. And the capacity of spherical capacitor is 4 pi epsilon naught into capital R. ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहना है. डन बेटा. Is it clear? Capacitance of a spherical capacitor is how much? C is equals to 4 pi epsilon naught into your R. ठीक है. यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूं. कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे. सो आई कैन से दैट कैपेसिटेंस ऑफ any conductor depends only on its shape या geometry बोलो, shape and as well as of your sign and medium in which electric field is present. ठीक है. क्लियर बेटा? Capacitance of any conductor depends only on its what beta? Shape and as well as of your size and also the medium in which the electric field is being present. Clear? Sure. Next one. Capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor.
capacitance of your parallel plate capacitor. इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C is equals to epsilon naught into your A divided by D. इसका अच्छा खासा प्रूफ है, लेकिन अपने को प्रूफ के चक्कर में पढ़ना नहीं है अभी। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा? C is equals to your epsilon naught into your A divided by D. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? देखो मान के चलो, अब मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर बेटा? पॉजिटिव टू योर नेगेटिव, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। और राइट नाउ इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है बेटा? एयर, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज राइट नाउ फॉर मी डी, बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरे पास राइट नाउ? ई, पॉजिटिव की वजह से। इसमें चार्ज कितना होता है बेटा? सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, इजंट इट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिकॉज ऑफ द वन प्लेट, E net will be equal to sigma by 2 times of epsilon naught plus sigma by 2 times of epsilon naught, यानी वो कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है ना? E net is equals to between the two parallel plate capacitor कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। or else I can write sigma is equals to charge by area Q by A into your epsilon electric field। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी दिस विल बी इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू योर डी। ये हो गया डेल्टा वी। Once I know the delta V, can I calculate the charge on this one? Capacity C is equals to Q divided by V. And this will be Q divided by, this is Q into D divided by epsilon naught into A. Q gets cancelled. तो C की वैल्यू कितनी आ गई? epsilon naught into A divided by D। तो वैसा आया मेरे लिए फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q बाय A इनटू एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय D। क्लियर है सभी को? व्हाट इज A बेटा यार? A is equals to area of plates, D is what here? Separation between plates or distance between the plates, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बेटा? समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। फर्स्ट वन इज कैपेसिटेंस। What do you mean by a capacitance? Capacity to hold the charge is known as of your capacitance. C is equals to Q by V. Capacitance of this spherical capacitor का फॉर्मूला 4 pi epsilon naught into R. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला epsilon naught into A by D, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय epsilon naught, और पोटेंशियल का फॉर्मूला Q into D divided by epsilon naught into A. A is known as area of plate, D is the distance between the plates। मतलब क्लियर है? चलो सिंबल ऑफ कैपेसिटर। जैसे बैटरी का सिंबल होता है ना, उसी तरह से इसका भी एक सिंबल होता है। दो पैरेलल प्लेट्स ऐसा डालती है, यहाँ एक टर्मिनल लगा दिए, यहाँ एक टर्मिनल लगा दिए। ठीक है ना?
So this is point A, this is point B. So इसके ऊपर एक चार्ज हो जाएगा, इस पे एक चार्ज हो जाएगा. This is the symbol of the capacitor. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. Series combination. Series combination of capacitors. If capacitors are connected in series, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा कुछ इन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड है. एक का कैपेसिटी C1, C2, C3, C4, Cn, isn't it? इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 1 by C in the series combination is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus so on up to 1 by Cn. This is the formula. ठीक है. For two capacitors, खाली दो ही कैपेसिटर से मान लीजिए. ऐसा एक कैपेसिटर है, फिर ऐसा एक कैपेसिटर है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है C1 C2. तो C इफेक्टिव किसका बन जाएगा? कितना? 1 by C effective is equals to 1 by C1 plus 1 by C2. And C effective will be equal to how much better? C1 C2 divided by C1 plus C2. डन बेटा, ये हो गया इसका. दो ये होगा था कुछ. ठीक है, डायरेक्ट लगा दे सर. पर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, पर n equal capacitors in series combination, कितना हो जाएगा? C equivalent I can directly write as C by n because सब similar है तो. So equivalent will be equal to C divided by your n. Done? ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन. उसके बाद चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैपेसिटर्स इन योर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट रिमेन्स सेम बेटा? पोटेंशियल, isn't it? If voltage drop across the capacitor is same, across the capacitor is same, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा बेटा? चार्ज, चार्ज इज सेम. यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2, यहाँ पर पोटेंशियल V3, यहाँ पर पोटेंशियल V4, यहाँ पर पोटेंशियल Vn. लेकिन चार्ज कितना होगा? चार्ज इतना ही होगा, Q. यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q. Everywhere the charge will remain for me same. Whereas in the parallel combination, charge divide होगा, potential will be remaining for me the same. तो इसका देखो capacitors when they are connected in parallel combination, एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, n number of capacitors, फिर ऐसा. ठीक है, जैसे n number of capacitors चलते चलते. इसके लिए C equivalent, C in parallel will be equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on up to Cn. ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, ये हो गया Cn. ठीक है ना? पर n
equal capacitors in parallel combination. तो कितना हो जाएगा बेटा? C effective will become Fermi. N into C कर दो, सीधा सीधा हो गया, ठीक है ना? This will be the formula in parallel combination and in the series combination. ठीक है ना? स्मार्ट बोर्ड पे नहीं लगा है क्या बेटा? हाँ, क्या हो गया? स्मार्ट बोर्ड पे देखने लगा फिर? नहीं सुन रहे स्मार्ट बोर्ड पे कोई भी? क्लास में नहीं सुन रहे कोई भी? तो क्या फिर कंटिन्यू करना है, क्लोज करना है? अच्छा, चलो नेक्स्ट वन. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. ये देखो बेटा, अगर अपने पास रेसिस्टेंस ऐसे है कुछ, ऐसा कुछ कैपेसिटर्स है हमारे पास, एक या दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है. एंड दे आर बीन कनेक्टेड टू सम टर्मिनल्स. यहाँ पर एक टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर एक टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना. इसकी कैपेसिटीज देख लो बेटा. यहाँ पर कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, इसकी कैपेसिटी C4 और ये हो गया C5. अगर चार से ज्यादा आपको अगर कैपेसिटर्स दिखे और कंडीशन आ जाए, इफ C1 divided by C2 is equals to your C3 divided by C4, C1 divided by C2 is equals to C3 divided by C4, ये अगर कंडीशन है, देन हम लोग इसको बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं बेटा. दिस वन इज नोन एज व्हाट? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge. ठीक है, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देन C5 will be ineffective, will be ineffective, so remove it and solve problem. ठीक है, C5 will become ineffective, this will become for me ineffective. Clear? Incoming voice call from Rentalakauki 1.
Any doubt to anyone? चलो एक मैं आपको प्रॉब्लम करवा दूं, सो गेट एन आइडिया। मान के चलो मेरे पास ऐसा कुछ कैपेसिटर्स है, 1 2 3 4। ये टर्मिनल बी, दिस इज योर टर्मिनल ए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ एंड देयर इज ए कैपेसिटर लाइक दिस, ऐसे कुछ ये हो गया ऐसा पॉइंट पी, यहाँ पर भी एक पी, और ये हो गया मेरे पास क्यू, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन इज पी क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। तो इसके नंबरिंग दे लेता हूँ मैं। नंबरिंग इज 10 माइक्रोफैरेड, some values there are 4 microfarad, 5 microfarad, 8 microfarad, 20 microfarad, and this one will be your 10 micro, कुछ random values, ठीक है। So what we need to do is find the C equivalent, find C equivalent across A। चार से ज्यादा है तो पहले अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि whether it will become ineffective or not। बताइए, देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद बाहर, तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ये हो गया टर्मिनल ये, और यहाँ पर कैपेसिटर्स रखेंगे। ऐसा कुछ, और बाहर एक कैपेसिटर, ये हो गया अभी। तो पूरे की नंबरिंग दे लीजिए, ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो गया 4, इजंट 5 इज इन मिडिल, तो ये हो गया 5, और ये बन गया मेरे पास 8, लास्ट वाले की तरफ, और ये हो गया यहाँ पर 10, ठीक है ना। और ये वाला हो गया मेरे पास यहाँ पर 20, दिस इज 20 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, बीच वाला 5 माइक्रोफैरेड, और लास्ट वाला 10 माइक्रोफैरेड। डन। तो क्या C1/C2 हो रहा नहीं हो रहा, देख लीजिए एक बार। देखो ये वाला C1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला C2 के बराबर हो जाएगा, ये वाला C3 के बराबर हो जाएगा, ये वाला C4 के बराबर हो जाएगा। तो C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल्स टू C3/C4, C4/10 इज इक्वल्स टू योर 8/20, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 2 10 जा, यानी 4/10 4/10, तो 5 will be, then 5 microfarad will be ineffective। ये तो बैलेंस हो गया, तो दिस विल बिकम इनइफेक्टिव, निकाल दीजिए। अगर निकाल दिया तो ये वाला जो है ना सीरीज बनेगा,
और ये वाला जो है ना सीरीज बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? तो ये वाला हो गया टर्मिनल ये, तो ये वाले बनेंगे इस तरह से सीरीज, और नीचे वाले ये भी बनेंगे इस तरह से सीरीज, और उसके साथ ये बन गया एक दूसरे टर्मिनल की। ठीक है ना? जब सीरीज में है तो ये वाला हो गया मेरे पास 4, ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। ठीक है ना? तब सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब क्या बेटा? थोड़ी द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, मैंने अभी बताया था, दो दो रहेंगे तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C2 ले लो, तो आई कैन टेक हियर डायरेक्टली, इसका पूरा मान के चलो, ये वाला, ये पूरा एक बन जाएगा, दैट इज 4 into 8 डिवाइडेड बाई 4 plus 8, और ये पूरा एक बनेगा, दैट इज 10 into 20 डिवाइडेड बाई 10 plus 20, और ये हो गया 10 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? तो इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो दो मिला के अपने को एक कैपेसिटर यहाँ आएगा, नीचे एक कैपेसिटर आएगा, और उसके साथ एक यहाँ पर आएगा, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। ठीक है ना? 4 into 8 डिवाइडेड बाई 4 plus 8, ये कितना हो रहा बताइए? 8/3। 10 into 20 डिवाइडेड बाई 10 plus 20, ये कितना हो रहा है? 20 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाई 30, यानी 20 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 10 माइक्रोफैराड। अब देखो ध्यान से, क्या ये दो पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं तो आई कैन राइट दिस वन एज समथिंग लाइक दिस, एक इफेक्टिव बन जाएगा, एक इफेक्टिव बन जाएगा, दिस इज बी, दिस इज योर ए। ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है देखिए, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये आ गया ना बेटा? सभी को कैलकुलेशन कर लिया ना? एक बार करके देख लेता हूँ क्या लगता है नहीं। ये कितना हो जाएगा? 4 into 8 प्लस ये हो गया 12। ठीक है ना? सो 4 1 4 3, ये हो गया 8/3, ये तो बराबर ही लिखा मैंने। ठीक है ना? तो 8/3 और 20/3 कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कितना आ रहा है? ये बन जाएगा 8/3 प्लस 20/3, और ये हो गया 10, दोनों सीरीज में है। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना देखो, और 28 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। तो सी इफेक्टिव अक्रॉस ए एंड बी विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई दिस वन इज 10 प्लस 20 30, यानी 58 डिवाइडेड बाई 3। So this will be 280 divided by 3 into 3 divided by 58, ये वाला चले गया। So this is the 280 divided by 58 माइक्रोफैराड्स। अब ये डिपेंड और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो सी इफेक्टिव अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 58। आया सभी को? एक बार देख लीजिए बेटा, पहले मैंने विजुअल ब्रिज चेक किया हुआ है, ये दो ये दो ये दो, और इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड ले लिया, तो बैलेंस हो रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दिया। ठीक है? तो C5 इफेक्टिव बन गया, 4 and 8 आर इन सीरीज, 10 and 20 आर इन सीरीज। मेरा गला खराब हो गया थोड़ा, चलिए। तो 4 and 8 आर इन सीरीज, तो ये हो गया 8/3, 10 and 20 आर आल्सो सीरीज, दैट विल बिकम फॉर मी 20 डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन ये पैरेलल है, इसके साथ ही सीरीज में, तो 8/3 and 20/3 आर इन पैरेलल, सो इट इज 28/3, उसके साथ 10 के साथ सीरीज, सी इफेक्टिव निकाल दीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर। आई बात समझ में सभी को? Am I clear with this one?
again it will be in series with the 10. 28 by 3 and 10 will be in the series bit. ठीक है ना? Yeah. नो नो, नॉट इन एनी केस बेटा, ये मैंने रूल लिखा है ना, ये देखो C1 by C2 must be equal to C3 by C4, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो प्लीज डोंट टेक दैट वन, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ देखो 4/10 आया, फिर यहाँ पर भी 4/10 आया, तो इसीलिए 5 ohms is becoming ineffective, वरना it will not become ineffective। कितने ले दो काम, कितने को क्लियर है बेटा सभी को? क्या हुआ, कनेक्टिविटी नहीं है कि आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे? तो कल की क्लास में सभी को परेशानी हो जाती। कल कर ले क्या, नहीं तो बोर्ड पे भी कोई भी नहीं लग रहे, so most of them dependent on Wi-Fi and today Wi-Fi is not working। तो ठीक है, फिर कल कर लेते हैं फिर आराम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मिस हो गए तो परेशानी होती है, वैसे भी रिकॉर्डिंग है आंसर, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है? ओके चलिए।